डियर स्टूडेंट, कल से हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल काफ़ी कुछ हमने आप लोगों को फिजिकल वर्ड से रिलेटेड चीज़ें बताई थी एंड टुडे सम रिमेनिंग पार्ट आई वांट टू डिस्कस विथ यू। कल हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कशन कर रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। एज यू नो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस in nature. They are respectively gravitational force, electromagnetic force, weak nuclear force and strong nuclear force that we call nuclear force. And the second thing, we have discussed the fundamental forces in detail, but nuclear force and weak nuclear force I want to discuss in detail. Let me talk about fundamental forces in nature. As yesterday we have, the last lecture we have studied, there are 4 fundamental forces. First one is the gravitational force. Second one is the electromagnetic force, and third one is the weak nuclear force, and fourth is the strong nuclear force. Gravitational force and electromagnetic force we have discussed in the previous lecture. As you know, if the force acting between any two bodies having certain mass, whether they are bigger or small, the force is said to be gravitational force. And according to Newton's law of gravitation, if you have two bodies having mass m1 and m2 kept separated at certain distance r, the force, which is gravitational force, is nothing but g ammonium 2 upon r square. It means the force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब यह हुआ कि अगर बॉडीज बिगर हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी मोर, एंड इफ पार्टिकल्स और बॉडीज लाइटर हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लेस होगा. सेकेंड थिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर पार्टिकल्स आर हैविंग एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, सो द सेम पार्टिकल के बीच में कंपैरेटिवली अगर वो नजदीक हैं या दूर रखे हैं, तो इफ दे आर एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी मोर. इफ दे आर एट ए लार्ज डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी लेस फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर की अगर हम बात करें तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. सेकेंड, इट ओबे the inverse square law. What is inverse square law? This F proportional to 1 upon r square. And also third, it is long range force. बहुत टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से लेकर के सन और प्लैनेट्स के बीच में, अर्थ और जो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड है उनके बीच में, यानी ये बिगर डिस्टेंस से बहुत क्लोज कहीं भी हो सकता है. इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है. एंड फोर्थ इज इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स नोन इन नेचर. यानी प्रकृति में जितने भी फंडामेंटल फोर्स या फोर्स नोन है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट वीकेस्ट होता है. एंड अट्रैक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें मास ही है और मास सब लगभग एक ही जैसे होते हैं. एंड ऑल्सो इट इज सेंट्रल फोर्स.
why it is central? It always acts the line joining them. And the second force, which we call electromagnetic force, electromagnetic force. The term, as you know, electric refers to the charge. Okay, this and the electric force काफी कुछ सिमिलर है, केवल अगर हम बात करें कूलाम फोर्स की, सपोज यू हैव गिवन टू चार्जेस Q1 and Q2 kept separated at certain distance r, then electric force can be written as equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon r square. As you know, there are two types of charge, positive and negative, so we can have two possible nature of electric force, can have two possible nature. One is the attractive, one is the repulsive. If the charges are same in nature, or just either they are positive or negative, the force must be repulsive, because like charges repel, unlike charges attract. तो इसकी प्रॉपर्टी क्या अगर हम देखें तो it is also a long range force. Okay, ये एटॉमिक न्यूक्लियर डायमेंशन से लेकर के एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस तक के लिए वैलिड होता है. एंड सेकेंडली it may be attractive और repulsive. यानी दोनों प्रकार का हो सकता है. यहाँ पर केवल अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल, और ये रिपल्सिव फोर्स होता है. थर्ड, इट आल्सो ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ. एंड फोर्थ, it is also central force. Okay, and this force has got very large value comparison to the gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और इसको शो भी किया जा सकता है बिटवीन टू प्रोटॉन. सपोज प्रोटॉन है दोनों, और प्रोटॉन के बीच में अगर हम देखें तो Fe और Fg दोनों का कंपैरिजन करें तो इट इज 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो प्रबलता है, स्ट्रांगनेस है, या जो उसकी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की या इलेक्ट्रिक फोर्स की, कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हाई है, 10⁻36 टाइम. ओके, सो इट इज आल्सो ए सेंट्रल फोर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है. और यहाँ पर जो फील्ड पार्टिकल है इन दिस फोर्स, फील्ड पार्टिकल इट इज फोटॉन. क्या होता है? फोटॉन इज द फील्ड पार्टिकल. हियर इज द ग्रेविटॉन, निश्चित रूप से मास है. एंड इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहते हैं? लेट मी टॉक अबाउट दिस. एज यू नो, ओरेस्टेड ने बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो करंट का कैरियर बनता है उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है. अगर ये करंट है इसमें वायर में तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो दैट विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स दैट वी कॉल मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. सो द मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स both are charge dependent, both are unified, और ये कह सकते हैं इनको हम सेपरेट नहीं रख सकते हैं. जहां इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और चार्ज के मोमेंट की कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स भी मैग्नेटिक फील्ड में आ सकता है. तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि दोनों को साइमल्टेनियसली कंबाइंड रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात की गई है. तो एंड थर्ड, ये दोनों चीजों का डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में अपने किया था. क्योंकि ये टॉपिक फिर से हम पढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें छूट गई थी. दैट्स व्हाई आई हैव
I want to discuss again. And third one is the weak nuclear force. Weak nuclear force. अब ये weak nuclear force क्या होता है? अब आप लोग अभी क्लास 12th में और काफ़ी पाठ्यक्रम के लास्ट में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ देखेंगे डिटेल में. केवल इतना समझ लें, दिस फोर्स is acting between the leptons. किस में काम करता है? leptons में. What are the leptons? Electrons, neutrino and muons. ये तीन पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल भी डिटेल आगे पढ़ेंगे आप लोग. ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड म्यूऑन्स एंड न्यूट्रिनोज आर चार्जलेस पार्टिकल्स. इनको हम एक तरह से एक साथ लेप्टॉन कहते हैं. तो जो इनके बीच में इंटरेक्शन होने से जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स. और अनस्टेबल न्यूक्लियाई में जब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी जब न्यूक्लियर डीके होता है, खास करके बीटा डीके, ओके, बीटा डीके दो प्रकार का होता है, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस. तो व्हाट विल हैपन, एज यू नो, अल्फा बीटा डीके रेडियो एक्टिविटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो अल्फा डीके, बीटा डीके. अल्फा डीके में आपका हीलियम न्यूक्लियस जो कि 2He4 है वो निकलता है XZA मान लीजिए कोई है, इससे अल्फा पार्टिकल निकलता है. तो YZ-2A-4 ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, डॉटर न्यूक्लियाई बनता है. और बीटा डीके में एज यू नो XZA से अगर बीटा डीके हो रहा है, खास करके बीटा माइनस की बात करें तो YZ+1A, यानी मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई में, बट द एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड हियर. इट इज बिकॉज ऑफ बीटा माइनस डीके के कारण ही होता है. तो ये जो रेडियो एक्टिविटी का जो बीटा डीके पार्ट है, इस बीटा डीके के प्रोसेस में ये वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है. तो व्हाट विल हैपन एक्चुअली बीटा डीके इनसाइड द न्यूक्लियस. जैसा कि आप जानते हैं कि कोई एटम है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर देयर, एंड दीज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर साइमल्टेनियसली कॉल्ड न्यूक्लियंस. इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस बोलते हैं. तो ये अनस्टेबिलिटी के कारण वन न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन में कन्वर्ट होता रहता है. तो इस समय बीटा माइनस डीके की बात अगर हम करें तो होता यह है कि न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जनरेट होता है. दिस इज द एंटी न्यूट्रिनो. अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रिनो की, ओके. तो अब ये बीटा प्लस डीके में क्या होता है? बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में प्लस E+1 प्लस न्यूट्रिनो. अब ये जो ये है इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन. क्या बोलते हैं? पॉजी. इसको प्रोटॉन नहीं बोलते हैं, ध्यान रहे. दिस इज द इलेक्ट्रॉन, योर इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज योर पॉजिट्रॉन. दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. E-1 का एंटी पार्टिकल है. Here is the neutrino and anti-neutrino is the anti-particle of neutrino. So the force which is generated because of this beta minus and beta decay between the leptons or neutrino and electron, positron and neutrino and anti-neutrino and electron, these are termed as weak nuclear force. Weak nuclear force जो होते हैं ये न्यूक्लियर डायमेंशन में ही काम करते हैं. ये इनकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इनकी जो स्ट्रेंथ है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दीज फोर्सेस आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट weaker than इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स ग्रेटर तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इनकी प्रबलता, इनकी स्ट्रांगनेस, इनकी स्ट्रेंथ कम होती है. तो एक तरह से ये वीक न्यूक्लियर फोर्स आप लोग जान गए.
Now let us talk about the fourth fundamental force, which is also termed as nuclear force, and we call it strong nuclear force. Okay, fourth one is the strong nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स. अब हम इसकी बात जब करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ध्यान रहे, देयर आर लॉट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड लॉट ऑफ प्रोटॉन्स देयर, व्हिच वी कॉल न्यूक्लियस. एज यू नो, प्रोटॉन में क्या होता है? रिपल्सन होता है. ओके, तो वेरी वेल नोन है फ्रॉम कूलॉम्स फोर्स कंसेप्ट से कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. तो न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इनसाइड न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रादर एक्सेप्ट हाइड्रोजन न्यूक्लियस. सभी न्यूक्लियस में क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन 1 होंगे, तो रिपल्सन अराइज होगा. लेट अस इसको देखते हैं कि कैसे जो है ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे आई. तो निश्चित रूप से देयर मस्ट बी सर्टेन फोर्स which is acting between the nucleons, which dominates the strong repulsive force between the protons, and that dominating force is termed as strong nuclear force. And nuclear force, strong nuclear force में जो particles होते हैं, they are mesons. Mesons are the field particles. Okay, field particles. एक में मैंने बताया ग्रेविटॉन होते हैं, एक में बताया फोटॉन होते हैं, एक में बताया लेप्टॉन होते हैं, और इसमें कौन से फील्ड पार्टिकल्स होते हैं? दे आर टर्म्ड एज मेसॉन्स. तो यूकावा साइंटिस्ट यूकावा ने बताया कि ड्यूरिंग द स्टेबिलिटी during inside the nucleus, one nuclei always converted exchange to other nuclei. ये होता रहता है, प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. तो न्यूक्लियाई का कन्वर्जन अदर न्यूक्लियाई, जस्ट लाइक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन का प्रोटॉन में. यहाँ पर पाई माइनस मेसान, यहाँ पर पाई प्लस मेसान, यहाँ पर पाई 0 एंड पाई 0. ये these are called pi meson theory, pi mesons. और यूकावा ने इस थियरी को दिया था, दैट्स वाई दिस इज नोन एज यूकावा पाई मेसन थियरी. और ये जो इंटरेक्शन होता है एक न्यूक्लियन का दूसरे न्यूक्लियन में, जनरेट होता है, एक पार्टिकल क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग मेसान कह रहे हैं. और ये न्यूक्लियंस को हम एक और नाम देते हैं जिसको क्या बोलते हैं? बेरियंस. ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और म्यूऑन्स की तुलना में दे आर हेवियर, तो इनको हम क्या बोलेंगे? बेरियंस बोलते हैं. द फोर्स व्हिच इज जनरेटेड between the interaction of baryons, between baryons is known as nuclear force. और इस फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नंबर 1, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स. इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स. इसकी जो डायमेंशन है 10⁻⁻14 से ज्यादा नहीं होती है, और 10⁻⁻16 समथिंग दैट. ये जो है न्यूक्लियर डायमेंशन ही होती है, न्यूक्लियस के अंदर ही ये फोर्स एग्जर्ट होते हैं. एंड सेकेंड वन इज इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट. ध्यान रहे, चार्ज इंडिपेंडेंट. ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं. प्रोटॉन है तब भी पाई 0 मिल रहा है, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में हो रहा है तब भी क्या बन रहा है? पाई 0 बन रहा है. न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, पाई माइनस पार्टिकल हो रहा है. प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो पाई प्लस पार्टिकल. ध्यान रहे, दीज आर नोन एज एक्सचेंज पार्टिकल्स. ये चार्ज के अनुसार ऐसा नहीं कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव. This force always attractive and very strong attractive force it is, and this force is strongest force known in nature. This is the strongest force known in nature. Okay, known in nature. अब ये जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट है, एंड 100 times
much more bigger than 100 times bigger than electrical force. किन्हीं पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करें तो जो लग रहे हैं उसके तुलनात्मक ये जो है 100 टाइम्स है. जैसे प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स हो रहा है तो रिपल्सन के साथ साथ इसमें जो ये फोर्स है इसके रिपल्सन को डोमिनेट करके 100 टाइम्स ज्यादा है. दैट्स व्हाई इट डोमिनेट्स. और ये नॉन सेंट्रल है. ओके, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, यानी ऐसा नहीं कि सीधी किसी पर्टिकुलर लाइन में लग रहा है. ये दिस न्यूक्लियर फोर्स डिस्टेंस की कुछ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो काफी ज्यादा पावर्स होती है. एग्जैक्टली मेंशन करना है जरूरी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के वी हैव स्टडीड ऑल 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन डिटेल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंजर्वेशन नेचर ऑफ फिजिकल लॉज व्हिच वाज लेफ्ट ऑन प्रीवियस लेक्चर, जो छूट गया था. नाउ लेट अस डिस्कस टुडे. एंड नेचर ऑफ फिजिकल लॉज की बात करें तो प्रकृति जो आपका नेचर है इट गवर्न्स बाय सर्टेन लॉज. मैकेनिक्स को अगर हम देखें तो उसमें ये लगते हैं ऑलवेज. तो उसमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ conservation of charge. Law of conservation of charge. And third one is the law of conservation of P, that is linear momentum. Okay, linear momentum. इन सभी चीजों को हम लोग आगे फर्दर इसी 11th में ही काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ दिया है तो लेट अस रीड इट. हम इसे पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, एंगुलर मोमेंटम. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो व्हाट एक्चुअली दिस स्टेट्स दैट इन ब्रॉड सेंस में अगर हम देखें तो द एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स विल रिमेन्स कंजर्व. Energy neither can be created nor destroyed. It can only be transformed. हम जैसे बल्ब को जलाते हैं तो इनिशियली बल्ब में क्या कौन सी एनर्जी गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई. फिर किस में कन्वर्जन हुआ? उसका हीट एनर्जी में कन्वर्जन हुआ. हीट जब काफी ज्यादा कॉइल जो उसका है बल्ब जो पहले आते थे वो टंगस्टन काफी हीट होने के बाद तो फिर लाइट में कन्वर्ट होता है. तो मेजर पोर्शन हीट में और कुछ पोर्शन उसका लाइट में. तो अल्टीमेटली एनर्जी कंजर्व होती है, केवल उसका स्वरूप बदलता है. जैसे हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन हो रहा है, तो तमाम इस तरीके से हीट एनर्जी का मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. डायनेमो में मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट. एनी वे यू कैन से दैट एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. अब हाइड्रो पावर प्लांट्स में देखें, वाटर को काफी हाइट तक स्टोर करके उसको गिराते हैं. तो टर्बाइंस पर जब गिरता है तो टर्बाइंस में पहले तो वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी वेरी हाई रही, और वो जब गिरा पानी हाइट से तो द वाटर विल एक्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या हुआ? रोटेट होने लगा क्या आपका आर्मेचर, बड़ी बड़ी जो होती हैं. तो आर्मेचर के रोटेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के द्वारा आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, एसी प्रोडक्शन हो गया. तो सिमिलरली यू नो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर अगर कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स उस पर लग रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व. मैकेनिकल, व्हेन आई से मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट डज इट मीन्स? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. इसका सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा. ओके, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉल है, उसको ऊपर से ड्रॉप कर दिया सर्टेन हाइट एच से, तो पहले कुछ एक्स साइड पर बी पॉइंट ले लिया तो एच माइनस एक्स बचा. इफ यू कैलकुलेट हियर ए बी सी ऑल द पॉइंट्स, द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए फ्री फॉल सिचुएशन में किसी भी बॉल की
will remains conserved because here is the ball is falling freely under the influence of gravity. As you know, gravitational force is the conservative force. So this system has got mechanical energy always remains conserved. So this is all about the conservation of energy. Now let us talk about the conservation of charge. Okay. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बहुत थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक ग्लास रॉड है, सपोज करिए ग्लास रॉड, और इसको सिल्क से सिल्क से अगर इसको रब करें तो सिल्क पर नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ओके, अब ये चार्ज जो क्रिएट हुए इसको आप लोग बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़े थे या 12th में आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के चार्ज का किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में रब करने से या किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से चार्ज हो जाना मींस इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नथिंग एल्स। केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एज यू नो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो इफ by getting any means energy, the charge or the electron from one body will be transferred to another। यानी जो ग्लास रॉड है इससे सिल्क में इलेक्ट्रॉन्स गए तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ इफिशियंसी हो गई, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज। बिकॉज एज यू नो इन मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। एटम्स को अगर हम देखें, molecules and atoms are electrically neutral. It is because number of protons and electrons circulating around the nucleus are exactly equal. If there is a situation arise when electrons get transferred from one body to another, so inside the nucleus or the atom, the number of protons becomes more, that's why it is positively charged, and number of electron here becomes more in the silk, so that's why it is negatively charged. In short, we can say law of conservation of charge states that charges neither can be created nor destroyed. It can only be transformed. It can only be transferred from one body to another body. चार्ज कहीं से कोई लाता नहीं है, इसे केवल हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं या करा सकते हैं। So this is all about conservation of charge. Let's talk about third, which is conservation of angular momentum. As we have discussed the conservation of energy and conservation of charge. As you know, linear momentum is written by P is equal to product of mass and velocity. If any particle it is in motion, then it has got certain linear momentum. And from the Newton's second law, as you know, that F can be written as equal to delta P upon delta T. It means if the external force is applied on any body, its linear momentum gets changed. It means if you look this formula for a system having more than one particle, that is 2 or 3 particle system, then it also holds good. That is for 2 particle system, let initial momentum was P1 and P2, the system's momentum can be written as P1 and P2, and after mutual interaction it's a linear momentum change P1 and P2 dash. Then if no external torque, external force is acting on the system having 2 particles, then their linear momentum before interaction, mutual interaction, and linear momentum after the mutual interaction will remain same, and it means delta P of the whole system will remains equal to 0. Okay, 0. That means if any isolated system, the linear momentum, if no external force is acting on any system, then it's a linear sum of all the linear momentum will remains conserved, or no change in the linear momentum is being observed. This is this can be observed in many cases. As you know, जैसे मान लीजिए कोई भी एक तरह से रिकॉइल ऑफ गन आप लोगों ने देखा होगा कि गन जब बुलेट से गन निकलती है तो बुलेट रिकॉइल करती है टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट में फ्यूल रॉकेट में नीचे की तरफ या जिस डायरेक्शन में फ्यूल तेजी से निकलता है थ्रस्ट के कारण, तो थ्रस्ट पा करके रॉकेट प्रोपेल करता है।
तो these are the examples of linear conservation of linear. Now we talk about conservation of angular momentum. As you know, ये टॉपिक नया है आपके लिए क्योंकि आपने रोटेशनल मोशन अभी उतना डिटेल नहीं पढ़ा है. तो लेट मी रियलाइज यू. P is equal to mass into velocity. Similar quantity in case of rotational motion can be written as J is equal to I omega. ये लीनियर वेलोसिटी है. दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर वेलोसिटी. मास के एनालॉगस क्वांटिटी इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम. ओके, एंगुलर मोमेंटम. और जो फोर्स की बात कर रहे थे, इस एंगुलर रोटेशन में उसको हम बात करेंगे टॉर्क की. टॉर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है, डोर को ओपन करते समय टॉर्क की नीड होती है. बिना टॉर्क के डोर ओपन नहीं हो सकता. किसी भी बॉडी में रोटेशन की टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू रोटेट अबाउट एनी पॉइंट, एनी फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज टॉर्क. तो टॉर्क के लिए हमें फोर्स चाहिए. फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे चाहिए. तो अगर किसी ऐसे रोटेटिंग सिस्टम की बात करें जिस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, तो उसका लीनियर मोमेंटम जो J है विल रिमेन्स कंजर्व. दैट इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर angular momentum. Means J is equal to I omega is equal to constant if tau external is equal to 0. जैसे मान लीजिए फ्लाई व्हील है, किसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इस पर टार्क 0 लग रहा है एक्सटर्नल. तो ये क्या होगा? जो इसकी एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम इसका रहा होगा, दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. एक्सटर्नल अगर एयर रेजिस्टेंस या अन्य चीजों को हम लोग इग्नोर कर दें. तो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो दीज 4 लॉज गवर्न्स द फिजिक्स, नेचुरल फिजिक्स. जितनी भी फिजिक्स में हम जहां भी मैकेनिक्स पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो ये लॉज जो है बेसिक फंडामेंटल फोर्स की तरह फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर हैं. इनको हमें जानना चाहिए. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर. One thing I want to tell you, after this video I have an idea to tell you to briefly some mathematical formulation, क्योंकि मैथमेटिक्स की बहुत आवश्यकता पड़ती है. जो तमाम ऐसे फार्मूले और एक्सप्रेशंस आपको चाहिए इन ऑर्डर टू लर्न द फिजिक्स, खास करके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन. और हमने डिसाइड किया है कि उन्हें कुछ अगले के वीडियो लेक्चर्स में उन्हें हम अपलोड करेंगे. और इसलिए जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो लर्न करें, जो नहीं जुड़े हैं वो अपने प्रीवियस वीडियोस को देख करके आगे 1 by 1 स्टेप्स को देखते हुए वीडियोस को आप सीख सकते हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज चल नहीं रहे हैं. दैट्स ऑल टुडे. अगले वीडियो में हम आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स के साथ मिलते हैं. दैट्स ऑल टुडे. ओके, बाय.